10 साल पहले भी वही कोर्स, वही सब सिलेबस था और आज भी वही सिलेबस है। तो डजंट दैट मेक यू क्वेश्चन द बेसिक्स ऑफ व्हाट दीज इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग? एंड ये कोई बहुत कम पैसे नहीं ले रहे हैं, ये एक एक सेमेस्टर हम्म। के 40-40, 45, हाँ, 50 हजार ले इन रहे हैं। इंडिया ना प्रॉब्लम क्या है ना, इन इंडिया पीपल आर मोर ऑब्सेसिव विद क्वांटिटी, राइट। ये भी करा देंगे कोर्स में, ये भी करा देंगे आपके बच्चे को, ये भी करा देंगे, रेडियो जॉकी भी बना देंगे, एंकर भी बना देंगे। कॉलेज पे निर्भर मत रहो, फाइंड सम गुड गुरु, एक अच्छा गुरु ढूंढो, है ना, मेंटर। और उसके साथ चिपक दो, मेंटर ढूंढो, है ना, गॉड फादर नहीं, मेंटर ढूंढो। जो सीनियर वहां बैठ के उनको सिखा रहे हैं वो उनके जितना ही या उनसे कम कमा रहे हैं। This is the mother of podcasts. नेशनल अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं मिस्टर आलोक वर्मा. ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ न्यूज़. In a recent article, he wrote that Indian journalism, once considered a noble pursuit of truth, has arrived at a moment of deep crisis. It is no longer just shrinking credibility of newsrooms or the increasing ideological bias in content that plagues the profession. The very pipeline that feeds the news industry, the journalism schools, and young aspirants are now being shaped by an environment that undermines the fundamentals of the craft. So basically, why did I quote him was, and this article, I'll put the link of this article beside beneath the video. तो जो जर्नलिज्म हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज के टाइम में, न्यूज़ इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, और जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई तालमेल नहीं है, उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. आई माई सेल्फ हैव been in the mainstream media for 3-4 years and then I switched to branded content. तो आज का ये जो कॉन्वर्सेशन है, दिस इज बिटवीन थ्री मीडिया पर्सन स्लैश trying to find their footing in the media industry slash alternative career slash बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं. So Chandan, who's my co-host, she's been into mainstream media for all her life. She was working with HT, ANI, she was working with Times of India. So she's a proper writing journalist, all right. And I'm also joined by Mohit, who now runs a quite a successful podcast called Khayal Mohit K, and was a part of the SL Media Group for about 6 years. Welcome to the podcast, Mohit. Thank you so much for having me, Soumya. It's so good to, connect with someone who studied almost in the same institution from where I've been passed out. Uh, Yeah, and he's also it's quite super, super nostalgic. senior for me. So he's from the same study Don't, center that I am from. all तो right. मोहित, जो हमारा टॉपिक है आज का कॉन्वर्सेशन का, Hmm. it actually is something very close to both mine and Chandan's heart because मतलब हम काफी बार ये डिस्कस करते हैं ना कि हमने जो स्कूल में पढ़ा, स्पेशली जो, जैसे मैं पीसीएम Hmm. थी, ठीक है, तो मैंने जो Hmm. पढ़ाई की उसका मैं क्या कर रही हूँ. अगर मैं साइंटिफिक फील्ड में जाती तो खैर मैं करती, मगर जो मैंने बहुत ही हार्डकोर साइंस पढ़ी उसका मैं क्या कर रही हूँ, हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं. बट जर्नलिज्म में कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं और जो नौकरियों पे Hmm. हमें कराया जा रहा है, उसमें Hmm. जो मैसिव डिवाइड है, इसका कोई आइडिया Hmm. नहीं है किसी को. Hmm. राइट. मतलब I have like I started off as a copy editor with Hindustan Times, and it was pretty much what was being taught in the college, not how to make a newspaper, how to edit your stories. ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया. But फिर Hmm. when you move to the digital aspect of the news publications now, Hmm. there's one thing that matters the most is Google Trends and clickbait headlines. और ये सब कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, पर आप एडिटर की डांट सुन सुन के और गालियां खा खा के सीख जाते हो कि अच्छा ये क्लिकेबल होगा, इस पे लोग क्लिक करेंगे, विच इज नॉट व्हाट जर्नलिज्म इज. What's your It is not experience has been ethical. like, Mohit? Mine. Okay. हाँ, So कैसा रहा what है? she's saying, she said something about clickbait, all right?
So I got to know about this because I've never been into a print media institute. Hmm. I have always been somehow related to either digital media or TV. All right. So at that point, being at the back end of TV networks, I certainly didn't realize that much the clickbait thing. But now when I'm on social media, uh, जैसे कि हम लोग सुनते थे पहले जब पिक्चरों में थे आज की ताजा खबर, और एक क्लिकबेट होता था अखबार में भी, वो कह रहे होते थे कि मतलब सबसे जो जो सेंसेशनल सबसे टाइटल होता क्रिस्पी था, जूसी। क्रिस्पी। Headline. हाँ, तो जो सिग्नल पे अखबार बेचता था वो भी उसी चीज को, वो क्लिक बिट ही बोलता था एक तरीके से, अगर आप देखो तो। हम्म द सेम गोज विद द न्यूज चैनल्स। एंड नाउ व्हेन आई एम running this Instagram handle where I post videos every day, and something that I really don't want to do, but competition is doing it. That's why I have to do it. I have to put some clickbait also on my thumbnail. So हम्म see, I totally understand that we are disappointed with mainstream media today. हम्म But as off record, as we were talking like just a few days ago, also Soumya, that हम्म uh, everything, whatever Media Institute is doing, is audience driven. हम्म More than any media institute or more than any uh, field, any stream of media, like be it print journalism or TV or anywhere, I am more disappointed with the audience. हम्म So it all ends with the audience. Because if I want to watch something, I want to consume something, हम्म media is going to present the way in the same way. हम्म वो उसी तरीके से दिखाएगा ना, है ना? So every time I connect with my audience, every time I connect with people on social media, हम्म I always tell them, if you're complaining about something, हम्म first of all, you have to stop consuming that, because somewhere down the line, you are the one who is consuming. हम्म So when it comes to TV or any journal, any print media or TV or social media, हम्म everybody is here for commerce. Everybody is doing a business at the end. हम्म So they wherever they find profit, तो they go यहीं for पर तो ये तो मतलब दिस इज द कैच वर्ड हियर कि it. Right. everybody is doing it for profit and commercialization. Yes. Journalism was Hmm. never about making money. Journalism was always about the Hmm. nobility, the noble pursuit of truth. ठीक है। So when you say about journalism, no, sorry, I'm हाँ। interrupting you, हम्म not just journalism, but you, if you consider the medical line also, हम्म like medical institutes, हम्म hospitals, हम्म uh, see, every time, if see, now Doordarshan is being handled by Sudhir, right? Now they're trying to evolve somewhere similarly to the private channels. हम्म See, first of all, you are not making government news agencies as powerful as private news channels. हम्म Everybody is getting funded over there, be it India TV or NDTV. We know the names who are running it right now, हम्म funding them right. I just want to know why we don't have a budget for Doordarshan, हम टैक्स similar देते to. हैं ना, जो जो हम टैक्स देते हैं उसी से दूरदर्शन चलता है। ठीक है। लाइक इन But द इंडिया में यूके, टैक्स भी कितने लोग देते हैं? so नहीं, like in देते the हैं, UK, देते हैं. BBC is in like in the UK, BBC is funded by the taxpayer. Okay, it's the Mhm. state's channel. Okay, Mhm. so similarly, Doordarshan is funded by the taxpayers, but Mhm. sadly, it has become, or it has always been, the mouthpiece Mhm. of the ruling government. ठीक है। Right, right. They have always तो glamorized them. हाँ, तो मतलब द पॉइंट इज, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक ओवर हियर इज बेसिकली Mhm. कि जैसे आपने जब बैचलर्स किया था, ठीक है, आप 2007 में पास आउट है, राइट? तो Mhm. आपने जब बैचलर्स किया था तो 2010. 2010 में पास आउट है, ठीक है। Right. तो अभी Mhm. आप आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स का आपने कितना इस्तेमाल किया है अपने 6 साल की नौकरी में हार्डकोर मीडिया इंडस्ट्री के अंदर? बिल्कुल भी नहीं शायद, क्योंकि मीडिया का वो अभी इंस्टीट्यूट्स की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है. बट लेकिन अगर if you talk about the ethical journalism, हम्म everything that I studied is relevant. I find it relevant. हम्म That मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि हम्म हमें पढ़ाया जाता था कि अगर कोई ऐसी न्यूज है जिसमें क्राइम की न्यूज है जहां पर मर्डर हुआ है किसी, हम्म ठीक है, तो वहां आप कभी यू विल नेवर रिवील द द टाइप ऑफ वेपन हम्म which is used to murder someone.
हम्म बट आज की डेट में आप देखो सारे चैनल्स, और जो भी कोई अगर कोई कॉन्फिडेंशियल न्यूज है हम्म जो मतलब कंट्री की मतलब सुरक्षा के लिए हम्म जरूरी है बताना, हम्म उसमें आप कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे। हम्म तो दिस इज आर मीडिया चैनल्स चॉइस दैट दे आर नॉट फॉलोइंग द द एथिकल वे ऑफ जर्नलिज्म, हम्म दे आर नॉट डूइंग इट दैट वे। तो अगर ये कहना कि रेलिवेंट नहीं है, हम्म वो वी हैव मेड इट रेलिवेंट बाय आवर हम्म ओन साइड। रेलिवेंट तो है अगर करना है, लाइक नाउ वी आर डूइंग अ ethical part of पॉडकास्ट, it is what you're saying. राइट? हम्म राइट नाउ व्हेन आई एम, जब से डिजिटल मीडिया आया है, हम्म people Dhruv Rathi or any other ethical person. I don't know. I totally leave it to your own judgment कि आप उसको क्या समझते हो। बट कोई भी ऐसा एक इंडिविजुअल जो हम्म अपने यूट्यूब चैनल पर न्यूज बता रहा है, ठीक है, एनी डिजिटल जर्नलिस्ट आई वुड से, हम्म तो वो कर सकता है। मतलब मीडिया इंस्टीट्यूट में अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो देयर रूल्स, देयर वर्क एथिक जो भी उनका है। हम्म नाउ व्हेन वी आर इन डिजिटल एज, जहां पर पैट्रन भी है, जहाँ पे क्या कहते हैं, यही होता है ना कि पब्लिक पब्लिक फंड करती है उनको, चैनल्स को, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे जा करके फंड किया जा सकता है किसी को। सो नाउ टाइम्स हैव चेंज्ड। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप कह रहे हो ना कि रेलिवेंट नहीं रहा जो हमने पढ़ा था, वी कैन अप्लाई दिस व्हेन वी आर प्रेजेंटिंग आवर ओन न्यूज हम्म एज अ डिजिटल। अच्छा, जो अभी बट पढ़ के जब बच्चे निकल रहे हैं, हाँ जैसे मतलब फॉर मेरा भी यही इंस्टेंस जो, हाँ, सवाल जो था। अभी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, this is not just a problem with journalism. Most of the courses that are there in any field, the relevance of application versus the relevance of the curriculum is highly questionable. Okay, for instance, एक काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, जिसका सिलेबस मेरे सामने है अभी, और मैं आपको उसके पहले सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स का नाम बताती हूँ, कोर्सेज का। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ग्लोबल मीडिया, फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स एंड स्किल्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। हम एआई के टाइम में बैठे हैं जहां पर प्रिटी डिसेंट कॉपी, एक एक ऐसा इंसान जिसकी जिस भी भाषा में कॉपी लिखी जा रही है उस पे हार्डली कोई कमांड है, वो भी चैट जीपीटी और जेमिनाई से बना करके डाल सकता है, ठीक है, केवल कुछ कीवर्ड्स लिख करके। प्रैक्टिकल लैब ऑन एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये तो काम का है। बेसिक्स ऑफ कैमरा लाइट एंड साउंड, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो चलिए फिर भी बेटर है, कुछ कुछ तो समझाया जा रहा है इसमें। साइबर जर्नलिज्म, आई डोंट नो व्हाट डज दैट इवन मीन, साइबर जर्नलिज्म, वर्ल्ड मीडिया सिनेरियो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो माई पॉइंट इज कि हम लोग ऐसे टाइम में बैठे हैं जहां पर अगर 10 लोगों का काम था एक ऑर्गेनाइजेशन की एक टीम में, विथ द एडवेंट ऑफ एआई अब वो 2 लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो मीडिया इंस्टीट्यूट्स को अपने कोर्सेज को इतना इवॉल्व करना पड़ेगा कि आप एआई को इंटीग्रेट करके ये सिखाइए कि हम कैसे और बेटर न्यूज़ को और क्विकली प्रोड्यूस कर सकते हैं और रिफाइंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और या तो आप ये जो कहानियां आप पढ़ा रहे हैं, लॉ एंड एथिक पढ़ाने प्रैक्टिस से आता है, राइट? हम ये जो, सो माई पॉइंट बीइंग, अगर 10 साल पहले भी वही कोर्स वही सब सिलेबस था और आज भी वही सिलेबस है, तो डजंट दैट मेक यू क्वेश्चन द बेसिक्स ऑफ व्हाट दीज इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग? एंड ये कोई बहुत कम पैसे नहीं ले रहे हैं, ये एक एक सेमेस्टर के 40-40, 45, हाँ 50 हज़ार बिल्कुल ले रहे हैं, ठीक है। 6 सेमेस्टर्स होते हैं, मतलब लोन लेकर के लोग मीडिया स्टडीज कर रहे हैं और उसके बाद 16,000 रुपये महीने की सैलरी इंट्रोडक्शन पे मिल रही है उनको, ठीक है, एज अ फ्रेशर। तो आई डोंट थिंक इट्स क्वाइट reasonable for children to opt for mass media and journalism anymore if they don't upgrade their curriculum. See, when I look back now, in the times when I was in college, Hmm. see, my parents were totally like, they had no idea about the music. And I would say 60 to 70% of parents have no idea about where their child is going. They are just ready to give money and कि हाँ ये institute है
एंड दे टेल यू लाइक बहुत सारी चीजें बता देंगे। इन इंडिया ना प्रॉब्लम क्या है ना, इन इंडिया पीपल आर मोर ऑब्सेसिव विद क्वांटिटी, राइट। ये भी करा देंगे कोर्स में, ये भी करा देंगे आपके बच्चे को, ये भी करा देंगे, रेडियो जॉकी भी बना देंगे, एंकर भी बना देंगे। एक तो इंडिया में वैसे ही, जैसे आपने भी कहा था उस दिन, रेडियो जॉकी और कैमरा के आगे, माइक के आगे मतलब ऑब्सेस्ड, है ना। तो वो 3-4 बुलेट पॉइंट्स पढ़ के पेरेंट्स आर लाइक, अरे हाँ वाह हाँ, वाह वाह हमारा वाह, बच्चा ऐसे टॉप एंकर बन है जाएगा ना। एंटर करते ही। तो हमारा हमारा बेटा इंस्टीट्यूशन या बेटी बहुत बड़ा न्यूज एंकर बन जाएंगे। ये बन जाएगा, तो एक बड़ा शैलो सा प्रोसेस है। और आप स्कूलिंग में भी देखोगे, ग्लोबल स्कूल्स की बात करें, सिर्फ मीडिया की बात नहीं करते, अगर एजुकेशन सिस्टम एट दी होल ऑन द होल बात करेंगे ना, आप देखोगे तो आप ग्लोबल स्कूल्स का भी क्या है, अगर आप उनके पास जाओगे अपने बच्चे को लेकर के एडमिशन के लिए, तो मोर देन द करिकुलम दे आर मोर फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके बच्चे को पूल मिलेगा, जिम मिलेगा, है ना, और एक्सचेंज प्रोग्राम सब में भेजेंगे। सो इट्स मोर अबाउट नेटवर्किंग नाउ। Institutions have become a hub of networking nowadays. हम्म People hardly care about what हम्म is the education curriculum or whatever. They know that अगर एक ऐसा बंदा है, मान लीजिए कोई कोई एक बहुत बड़ा सीईओ है किसी कंपनी का, हम्म या एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, और वो अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहा है, उसे पता है कि ये जाएगा 3 साल, वहां नेटवर्क्स बनाएगा, मेरी कंपनी में आएगा, मैं इसको सब सिखा दूँ, हम्म ठीक है। सो पीपल आर हार्डली डिपेंडेंट ऑन दैट एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप स्कूल्स में भी देखो ना, बचपन से कितने बच्चे हैं जो स्कूल में जाकर के सिर्फ स्कूल में ही पढ़ते थे। लेकिन समझ रहे हो आप मेरी मोहित, आप याद करो कि कॉलेज के अंदर, जिन कॉलेजेस में हम लोग पढ़े हैं, अगर अगर 35-40 बच्चों की क्लास थी, तो उन 35-40 बच्चों की क्लास में से कितने ऐसे बच्चे थे जो करोड़पति के बच्चे थे? बिहार से, छपरा से बच्चे थे, ठीक है, तो झारखंड मैं के आपको बच्चे वही थे, बता रहा हूँ, ठीक मैं है। आपको एक बात बता ये रहा वो हूँ। माँ बाप दो हैं जो तरीके के बहुत पैसा पेरेंट्स हैं, इकट्ठा करके भेज रहे हैं जर्नलिज्म करने। 2 तरीके के पेरेंट्स हैं। मैं वो जो माँ बाप पैसे इकट्ठा करके भेज रहे हैं, हम्म ऑल दे कैन गिव इज मनी, दे हम्म आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट, मतलब 2 तरीके के पेरेंट्स, हम्म और हम्म दोनों ही अपना एक्सपीरियंस पे हैं। एक ऐसा है जिसकी जो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके भेज रहा है, ठीक है, उसको उसके अलावा कुछ नहीं पता, उसे तो सिर्फ पता है बेटा मैं पैसे फीस भर सकता हूँ, आगे तेरी तेरी समझ है कि हम्म तू जो कर रहा है। हम्म अगर आप देखोगे तो यही होगा, और आज से आने वाले, मतलब जब आपके भी और हमारे बच्चे बड़े होंगे ना, तब भी यही होगा। पेरेंट्स कितना अपडेट रहेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे के टाइम फेज के साथ मैच कर पाते हैं अपनी बच्चे। हम्म अब इसी जो एजुकेशन गैप है, जो अवेयरनेस गैप है, इसका इंस्टीट्यूशन फायदा उठाते हैं, क्योंकि बच्चा अब एक ऐसी स्टेज में, कॉलेज का मतलब क्या है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, लाइक मूवी वाला एक पूरा सिनारियो कि मुझे तो मौज करनी है। बच्चा वैसे ही, बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम जो बच्चे जा रहे हैं कॉलेज में, दे आर हार्डली फोकस्ड ऑन एजुकेशन, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंट ऑफ द कॉलेज। तो एक तो वही, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लासेस हुई भी है, मान लीजिए हमारे कॉलेज में भी हमारे टाइम पे रेडियो की क्लासेस होती थी, अगर 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो चॉइस होती थी कि आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते, दैट वाज टोटली ऑप्शनल, है ना, क्योंकि गेस्ट लेक्चर होता था। तो उसमें से अगर 10% स्ट्रेंथ होती थी, तो जब बच्चा ही प्रेजेंट नहीं होगा, तो कोई क्या कर लेगा, एंड कॉलेजेस नो इट वेरी वेल, तो दिल्ली उनको सब आके वो पता 3 साल बेसिकली आप दिल्ली को एक्सप्लोर करते हो और एंजॉय करते हो। अगर आप बाहर किसी शहर से आए हो और आप जर्नलिज्म का कोर्स करने आए हो दिल्ली में, तो आपने मोमोज खाने हैं, दिल्ली के क्लब्स को एंजॉय करना है। है, हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने हैं और जिंदगी के मजे लेने हैं, क्योंकि 12वीं से निकल के आए हैं। पर वेरी पर अनफॉर्चुनेट। I want like मेरी क्लास में हम्म, I came from कश्मीर टू जालंधर, एंड ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो आपने बोला, मेरे साथ भी ऐसे हम्म, बहुत बड़ा झटका लगा कि मतलब कॉलेज क्या था, एंटर किया, हाँ। एक राउंड काटा और कॉलेज खत्म। सो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था एक। हमारा तो इतना भी नहीं था। हम तो उसके बहुत बाद याद पर दिलाया यार। हमारी क्लास में ऐसा था, दो इट वाज अ फेयरली न्यू डिपार्टमेंट इन आवर कॉलेज, but I remember all my batchmates doing something or the other on their own, like doing राइट। internships, writing for newspapers, or Arun going was, up. do you know about the Jhumru? The आई Jhumru हैव was heard her, was her classmate, Arun Singh from अरुण Jalandhar. Yeah. He अरुण works with अरुण he works He's with a NDTV, and he's also राइट। a very big comedy content creator, sort of funny वन, content हाँ creator. सुन, Hmm. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू ऐड हियर इज, whosoever is doing good right now Hmm. in professional field, like Hmm. professionally,
they all were very much focused on their own. As she said, as Chandan said, that you have to be on your own Hmm. at some point. Like you are studying everything theoretically, but the people, the students who were doing something parallelly outside also, trying to find their own way, not dependent on college के एक दिन मेरा 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे और वंदना मैम मुझे लेकर के जाएंगे कि हाथ पकड़ के एनडीटीवी में या इंडिया टीवी में. So it is not going to happen. People had this illusion, and college created this illusion that once you complete your studies, 3 साल पढ़ो, उसके बाद we are here to place you somewhere. But Which is not this the never truth. happened. Which is not the truth. Okay. Yes, of course not. Of course तो not. फिर आप ये बताओ कि वो जो 35,000 40-50,000 हम 3 महीने के जो भर रहे थे पैसे, उसका क्या मतलब है? वो सिर्फ उसका पेपर सिर्फ की इतना डिग्री ही है? मतलब है, वो सिर्फ यही है कि ऑन पेपर आपको जो बोला गया था पहले दिन, हाँ. वो सब चेक करते गए कि हाँ अच्छा इसकी क्लास लग गई, इसकी क्लास लग गई. देयर इज नो सोल टू इट, देयर इज नो पर्पस टू इट. 90% of students have no purpose while studying. Once they get into the industry, only then they get to know the reality of the industry. So Let me tell you base, about the banking sector. आप जर्नलिज्म की बात करें, बैंकिंग में देखो ना, कौन सी बैंकिंग में बताया जाता है कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा पहले दिन जॉब से. How much bankers are saying true, being truthful to you? Is your bank truthful to you? No. They're always hiding something. They're selling you insurance, they're selling you different kind of services by giving so many lies to you. सेम Punch and गोज विद continue. मेडिकल स्कूल Making आल्सो. this lie. स्कूल में थ्योरी Every पढ़ाते हैं profession. सिर्फ. हाँ. basically I think अगर हम जर्नलिज्म की बात करें या अब हम किसी भी कोर्स की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑन जॉब ही आप सीख रहे हो. इट्स ऑन जॉब Yes, एक्सपीरियंस दैट यू गेट. और मोर सो right. बिकॉज क्या हो जा रहा है कि जर्नलिज्म बिकॉज ऑफ एक तो जर्नलिज्म बोलना इसको मुझे लग रहा है कि बहुत ही इनकरेक्ट है. एक तरीके का ये Hmm. कंटेंट क्रिएशन, यस, क्यूरेशन, एग्रीगेशन ही रह गया है, क्योंकि जर्नलिज्म इन इट्स ओन सेंस हैड अ लॉट ऑफ सोल एंड लाइफ एंड ओपिनियंस एंड काफी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व थी जो अब कहीं है नहीं. तो हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, खबरें प्रोड्यूस तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन उनमें जान नहीं फूंक पा रहे हैं. ठीक है. और ऑब्वियसली बिकॉज मीडिया इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज, उनको भी प्रॉफिटेबल रहना है, तो वो भी अलाइंड है, उनकी आइडियोलॉजीज कहीं अलाइंड है, तो आपको भी बहुत ही क्विकली या तो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली आपको खुद को अलाइन करना पड़ता है उनकी आइडियोलॉजी के साथ टू वर्क देयर, है ना? और या तो और आप एक बहुत छोड़ के आगे अनफॉर्चुनेट चले आपको जाइए. बात बताता हूँ. हम्म. एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात बताता हूँ आपको. Like digital media should always look up to the national media, right? TV हम्म. media, like they would do something. जिनके पास इतना पैसा है, हम्म. इतना बड़ा विजन है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, हम्म. वो कुछ शायद ऐसा कर रहे होंगे कि डिजिटल पे जो लोग छोटे छोटे चीजों पे काम कर रहे हैं, दे शुड लुक अप टू देम. लेकिन अब ऐसा हो रहा है, दे आर लुकिंग अप टू द डिजिटल. स्मॉल, है ना. एवरी न्यूज चैनल हैज गॉट देयर डिजिटल वर्जन, है ना. आज तक इज डूइंग लल्लन टॉक. नाउ these are also going for podcast. Every news anchor has their own podcast, so they have nothing new. Now we are witnessing something very different right now. हम्म. I have like when I started in 2017 independently doing like commercial films, हम लोग बहुत मतलब हाई एंड वेडिंग शूट्स करती थी मेरी टीम, है ना. हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे करते थे, प्रोडक्ट शूट्स करते थे. जब मैं जॉब से निकला तो आई वाज डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम, एंड सम किड्स वर असिस्टिंग मी विद दैट, जो लोग पढ़ रहे थे. नाउ कमिंग टू द योर पॉइंट कि आज के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन देयर करिकुलम. उनको कोई थ्योरेटिकल से मतलब नहीं. मतलब ही नहीं है. हम्म. जाते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं, आ जाते हैं. दे आर प्रीटी मच अवेयर्ड अबाउट, जो सिंसियर हैं काम को लेके, दे वांट कितने टू हैं बी ये? स्ट्रीट स्मार्ट हैं. मतलब आई वुड से अब जो है 2019-20 के बाद, स्पेशली कोविड के बाद, हम्म. जो लोग कुछ करना चाहते हैं, जिनका कुछ विजन है कि हाँ मुझे कुछ चीजें से करना है, फोकस है, वो कभी भी अपने थ्योरेटिकल पार्ट पे रिलाई कर, जो उनको पता है कि ये बहुत घिसा पिटा है, हम्म. वो या तो जाते हैं किसी के पास. द बेस्ट थिंग अबाउट देम कि वो बहुत कोल्ड ईमेल्स करते हैं, वो बहुत लोगों को रीच आउट करते हैं, वो डोर टू डोर जाते हैं, वो सीखना चाहते हैं. दे ऑलवेज गो टू समवन के भाई चाहे वो बहुत अचीव ना कर सकता हो, क्योंकि बैक इन 2017-18 आई वाज समवन जो अच्छा काम कर रहा था, बट ऐसा वेल नोन नहीं था. बट स्टिल दीज किड्स केम टू मी कि हमको आप सिखाओ ना.
एंड एट द सेम टाइम वो यूट्यूब से सीख रहे थे। और अब तो खैर यूट्यूब का रेवोल्यूशन ही अलग है। आप देखोगे विद इन 5 to 10 years, आई ये बहुत एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे तो कॉलेजेस की एग्जिस्टेंस पे डाउट हो रहा है कि रहेंगे नहीं। हम्म जिस तरीके से यूट्यूब पर एक लर्निंग का एक रेवोल्यूशन है, हम्म जहां आप जाकर बहुत कुछ सीख सकते हो। आज से 5 साल पहले पॉडकास्ट का नाम नहीं पता था किसी को, है और ना। अभी सैचुरेट हो चुका है मार्केट पूरा। नो 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 नो, लेट मी टेल यू, हम्म सैचुरेट नहीं हुआ हम्म अभी तो। इंटरनेट को कह लो आप या पॉडकास्टिंग को कह लो, क्वालिटी पॉडकास्टर्स आप मेरे को नाम बता दो 5 इंडिया के अंदर, इंडिया में, ओह यू विल नॉट एबल अरे टू क्या नेम। तो नाम है, आई लाइक दिस गाय यार, व्हाट्स हिज नेम, राजशमानी। नो ना, श्वेताब श्वेताब गंगवार, आई डोंट नो, बहुत अब्यूज करते हैं, क्या नाम है उनका? जो काफी मोटिवेटिंग बातें करते हैं। हाँ मतलब काफी सॉलिड सिंपल उनके उनके आपस के भी जो पॉडकास्ट्स हैं, सेल्फ टॉक्स भी है। वी कैन सी यू मोहित, वी कैन सी यू, यू कैन से, वी कैन हियर यू। आई थिंक कुछ इंटरनेट का उनका इशू है, एनीवे। सो द पॉइंट इज चंदा, जैसे अल्टीमेटली व्हाट ही इज सेइंग इज कि यू आर ऑन योर ओन, ठीक है। जस्ट लाइक इन एनी अदर फील्ड में क्या होता है कि एटलीस्ट जो डिग्री दी गई होती है, अगर आप कंपटीशन और उससे जा रहे हो, इंजीनियरिंग और इन सब की, अगर लॉ की बात करें या मेडिसिन की बात करें, उनमें जो डिग्री दी जाती है उसकी वैल्यू थोड़ी जर्नलिज्म डिग्री से हाई होती है। तो क्योंकि हमारा बहुत ही प्रैक्टिकल कोर्स है, एकेडमिक कोर्स नहीं है, तो पढ़ाई की तो उतनी कोई वैल्यू है नहीं। और अगर आप अपने वक्त को भी वैल्यू नहीं दोगे वाइल यू आर स्टडिंग इन दोज 3 years, देन यू आर लिटरली ऑन योर ओन। हाँ मतलब मतलब अगर आप वो 3 साल, अ, हम्म 3 साल का ही होता है बेसिकली। जो अगर आप वो बैचलर्स। हाँ, 3 साल अगर आपने हाथ पैर नहीं मारे, तो आई थिंक प्लेसमेंट तो बहुत दूर की बात है, इंटर्नशिप मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो ट्रू। आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपका डिग्री कंप्लीट करने के लिए। और कॉलेजेस, आई रिमेम्बर हमारे कॉलेज वालों ने हमें काफी यू नो दे अश्योर्ड अस कि हाँ हम आपकी इंटर्नशिप लगाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म बाय द एंड जब हमें हॉस्टल छोड़ना था और हमारा लास्ट डे था हॉस्टल का, हाथ पैर मार मार के हमने इंटर्नशिप खुद ढूंढी थी। हम्म मतलब हम लोग हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस जाके बैठ गए थे, मी एंड माय फ्रेंड, कि भैया आपको इंटर्नशिप हमें देनी पड़ेगी क्योंकि हमारे को तो हॉस्टल छोड़ना है, हम कहाँ जाएंगे। ओके। तो अश्योरेंस शुरू में बहुत दी थी कि नहीं नहीं हम आपकी इंटर्नशिप लगा देंगे, आप टेंशन मत लो। तो अगर हाथ पैर नहीं मारोगे तो इंटर मतलब नौकरी तो बहुत दूर की बात है, आई थिंक इंटर्नशिप ही नहीं मिलती है। मोहित, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि हाँ आपने जी, हाँ जी। हार्डकोर जर्नलिज्म क्यों छोड़ा? व्हाई डिड यू लीव द एसएल ग्रुप और द द टीवी न्यूज मीडिया? ये मेरे को ना दो दो रीजंस थे मेरे। एक तो मॉरल, ऑन मॉरल ग्राउंड्स मुझे बड़ा ना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, क्योंकि मतलब कि क्या ही मतलब है, लाइक व्हेन आई वाज देयर विद अ चैनल और इनपुट, मैं इनपुट पर था, इनपुट डेस्क पर था मैं, हम्म और रीजनल चैनल था। तो मुझे हम्म तो सच्चाई तभी समझ में आ गई थी 2016-15 में, कि ये सब सिर्फ नाटक चल रहा है, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कॉल जर्नलिज्म। क्योंकि मैं इनपुट डेस्क पे था, वहां पर एक शीट लगी रहती थी और उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा होता था। मतलब जिस जो नेगेटिव में है, वो कितने ही अच्छे काम कर ले, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा उनके चैनल। हम्म मतलब वो पूरा एक था। सो दिस इज नॉट न्यूज, कि मतलब आप फैक्ट क्या है। न्यूज का पहला थिक तो ये है ना, दैट यू हैव टू प्रेजेंट फैक्ट। तो अगर आप एक पर्सपेक्टिव बेच रहे हो, हम्म अगर आप एक प्रोजेक्शन बेच रहे हो, हम्म तो फिर ये न्यूज कहाँ से हुई? तो इट वाज वेरी आप डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि नैरेटिव क्योंकि बेच जब रहे आप हो एक, अपना। आप नैरेटिव एग्जैक्टली, तो जब हम पढ़ के निकले ना, एग्जैक्टली सौम्या जैसा आप कह रहे हो, बहुत सही बात है ये, कि हम पढ़ के निकलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जर्नलिज्म में आपको लोगों के हक के लिए लड़ना है, आपको लोगों की आवाज बनना है। लोग हैं कहाँ? लोग कहीं नहीं है। it's all between political parties, it's all between political parties and this news media, where they are just presenting their propaganda and narratives, that's it. तो एक तो वो था, अभी प्लस अभी सैलरी की अभी तरफ से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था मुझे। सॉरी, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम
कोर्ट की तरफ से भी काफी फटकार लगाई गई और सरकार ने भी कहा कि देयर आर सर्टेन स्टोरीज और देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट शुड नॉट बी पब्लिश्ड और यूज्ड ऑन national news channels. Do you think it is going to change? Something is going to change after this? No. Because uh, मतलब एज अ कंज्यूमर एज अ जो हम इस देश की जनता है, हम लोग वही कंज्यूम कर रहे हैं और हम लोग आई थिंक चेंज भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैम लगता है ये फटकार से कोर्ट की कुछ भी नहीं होता है। फटकार के बाद कुछ 1% 2% बदलेगा? कोर्ट की फटकार क्या कर लेगी, जजेस चेंज हो जाते हैं रातों रात। फटकार इज जस्ट अ फॉर्मल प्रोसीजर के, चलो कुछ दिखता है। मिर्जापुर में एक डायलॉग था कि जनता का सेफ होना जरूरी नहीं है, सेफ फील करना जरूरी है। तो ये सिर्फ एक फीलिंग है इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और बहुत टाइम टाइम पे, ये पहली बार नहीं हुआ कि कोर्ट ने फटकार लगाई, कब से लगा रहे हैं, कब से लगाते आ रहे हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज अनटिल एंड अनलेस ऑडियंस अपना टेस्ट चेंज नहीं करेगी। और अब देख रहे हो कुछ हद तक हो भी रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो नई जनरेशन आ रही है, कहीं ना कहीं कम से कम वो कंज्यूम तो कुछ अच्छा करना चाहे, वो कुछ क्वालिटी। क्योंकि आप देखो ना, हम में इतनी पावर है ऑडियंस में कि एक आदि पुरुष जैसी बड़ी मूवी आती है, ट्रेलर आता है और ट्रेलर चेंज करना पड़ जाता है। तो ऑडियंस की आप पावर देखो ना कितनी बड़ी। हम्म तो ट्रू आज ये अच्छा है कि हम, कि अब ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। जब तक टीवी था सिर्फ, जब हम्म तक वन वे कम्युनिकेशन था, आज कमेंट बॉक्स है, आपको लाइव पता चल रहा होता है, यू हैव टू फेस इट एनी हाउ। फीडबैक है, तो फीडबैक कोई लूप है एक। आजकल हाँ, ये जो पूरा हमारा सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर का, हम्म ये कुछ नहीं कर सकता। ये 1000 1200 1500 लोगों का जो बनाया हुआ एक सिस्टम है, जिसमें 500 550 हमारे पॉलिटिशियंस हो गए पार्लियामेंट में, या जो भी लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इट कैन नॉट चेंज एनीथिंग until unless 95% of the population is going to change their perspective towards अच्छा, आप ऑडियंस की बात कर रहे हैं मोहित। यू हैव क्वाइट अ सक्सेसफुल इंस्टाग्राम चैनल एंड आपका ऑडियंस इंटरेक्शन काफी हाई है। आई वॉन्ट योर टू पीस ऑन द फैक्ट कि जब आप कहते हो कि अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने वाली ऑडियंस नहीं है, ठीक है, गुड क्वालिटी, मतलब इट इज अपॉन द ऑडियंस कि आप कैसा कंटेंट क्रिएट करते हो और कंपेल होते हो क्रिएट करने के लिए कैसा कंटेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट एंड हाउ योर एक्सपीरियंस हैज बिन? मुझे ऐसा लगता है कि when you have a big number of audience, हम्म this is your responsibility to at least present the facts हम्म and just say what you feel is right. हम्म See, nobody is perfect. मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज में परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ, या जो हम्म मैं बताता हूँ वो 100% सही है। हम्म बट एटलीस्ट व्हाट आई फील इज राइट, मैं वो तो कम्युनिकेट करूँ। हम्म Right now, 99% of the Instagram handles are running with the perception of audience, कि ऑडियंस क्या चाहती है, हम्म समझ रहे हो। और इससे लड़ना भी बड़ा मुश्किल है, इस हम्म पूरे जो उससे लड़ना भी बड़ा मुश्किल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की जब बात कर रहे हैं चलकर, आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 12 to 1500 फॉलोअर्स एट दैट टाइम, एंड ऑल दोस फॉलोअर्स बिलोंग टू पाकिस्तान। हम्म ओके। ऑलराइट, आई हैव इवन पुट द स्टोरीज, मैं आपको भेजूंगा हर कहीं। तो क्योंकि see, जब आप अपनी सेना का तो सपोर्ट करोगे ना उस टाइम पे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीवन, जब आप बिटवीन अ वॉर हो तो आप अपनी सेना का मनोबल बढ़ाओगे। अब मैं उस पर स्टोरीज डाल रहा हूँ वाई सपोर्टिंग ऑपरेशन सिंदूर, सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग कि कुछ एक्शन हुआ है, रिटेलिएट किया है। तो पाकिस्तानी मेरे को इतने डीएम्स आए हैं ना, इतने डीएम्स आए हैं, अनफॉलो 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 अनफॉलो। तो क्या होता है ना, ऑडियंस ऑलवेज ऑलवेज वांट्स टू सुपर इम्पोज देयर डिल्यूजन ऑन यू। आप समझने की कोशिश करो कि जो दिस डिल्यूजन में लोग जी रहे हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इज ऑल द गेम ऑफ रिलेटेबिलिटी। सोशल मीडिया में क्या है कि आज मान लीजिए मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, ठीक है, मैं लाइफ कोच हूँ, ठीक है, जो लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं मेरे चैनल के थ्रू बना दिया, हम्म एंड व्हेन दे फील सेटिस्फाइड, व्हेन दे फील गुड आफ्टर टॉकिंग टू मी, है ना, सो आई फील गुड ऑल्सो। बट मैं कहता हूँ दैट आई एम सेल्फ लर्न गाय। मैंने हम्म कभी क्लेम नहीं किया दैट आई हैव गॉट सम डिग्री इन इट और समथिंग। आई वाज हम्म अ कंटेंट क्रिएटर एंड स्टिल आई कॉल माई सेल्फ अ कंटेंट क्रिएटर, हम्म नेवर एन इन्फ्लुएंसर। ऑलराइट, इन्फ्लुएंसर वर्ड इज समथिंग वेरी, जिसको बहुत ही बदनाम कर दिया लोगों ने, और वो है भी बहुत। एवरीबडी कांट बी एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ओके। तो क्या होता है,
जैसे मेरी शादी भी हुई थी फरवरी में, तो मेरी कुछ वीडियोस ऐसी थी जो प्रो मेन थी। सो और मतलब ऐसा था कि एक वीडियो थी जो मेरी बहुत वायरल हुई थी, जिसमें मैं बोल रहा था कि सब पीछे पड़ रहते हैं, सवाल करते रहते हैं कि शादी कब करें। एंड क्योंकि मुझसे सवाल कहीं ना कहीं पूछा जा रहा था, सो आई थॉट दैट दिस इज a question that has been asked to many people and people are frustrated with this question, a social question कि कि शादी शादी कब कब करते कर हैं। रहे हो? तो आई जस्ट मेड अ वीडियो ऑन दिस। हम्म। हाँ, मैंने वीडियो बनाया एंड इट वेंट लाइक रॉकेट, और इतना वायरल हुआ वो। एंड पीपल गॉट दिस परसेप्शन कि यार ये आदमी शादी के खिलाफ। हम्म तो वहां से जो फॉलोअर्स आए, जो ऑडियंस आई, हम्म they thought that I am against the institution of marriage. So when हम्म I got married, more than congratulations, I got uh, uh, this comments on my photo जो मैंने अपनी शादी की डाली थी, unfollow, unfollow, unfollow. So I would be like the only person on this planet जो unfollow ज्यादा सुन रहा है, congratulations बोला था। तो people, मैं इस सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ that my point is that people have a perception and people live in their own land of thoughts, जहां पर उनके खुद के कंफर्मेशन थॉट्स है बायस और है वो उन्हीं को बेसिकली परफेक्ट कि मानते मैं हैं। ऐसा सोचता हूँ सोचती हूँ, और हाँ आप अगर सामने हाँ वाला मैं वही कंटेंट देखूंगी जो मेरे सोच को कंफर्म कर देता है। हाँ, ठीक है। तो कंफर्म करता है। तो हम्म वो वाला गेम है। ए, तो यहाँ पे अब न्यूज पे जैसे भी यही है। हाँ, मैं ये यहीं पे आ रही थी कि न्यूज चैनल्स के भी अपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स हैं। पहले ट्विटर पे बहुत ज्यादा फोकस था सबका, हाँ बिकॉज काफी अनबायस समझते थे ट्विटर को। ट्विटर पे हम्म अगर किसी ने कुछ लिख दिया तो पत्थर की लकीर टाइप्स हो जाता था। हाँ ऑफिशियल हाँ। स्टेटमेंट भी ट्विटर के थ्रू आते थे, बट आफ्टर द टेक ओवर एंड एवरीथिंग चीजें बदल गई। अब यहाँ पे जो न्यूज मीडिया के सोशल हैंडल्स हैं, मतलब इंस्टाग्राम हैंडल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हो गया या एनडीटीवी का हो गया या एबीपी का हो गया, वो लोग भी मोर देन अ न्यूज चैनल, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू बी इन्फ्लुएंसर्स। मतलब जो आप यस। छोटे छोटे कंटेंट, ये इंस्टाग्राम हैंडल्स देखोगे जो न्यूज शेयर करते हैं या कोई वायरल वीडियो उनके पास होता है वो शेयर करता है, और आप कुछ मिनटों में देखोगे कि बड़े बड़े न्यूज मीडिया चैनल्स के पास वो वीडियो होता है, लाइक दे कॉपी इट हम्म एंड दे पोस्ट इट, हम्म विच आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक इतना बड़ा नाम हो। ऑफ आप कोर्स, ऑफ कोर्स, अच्छा। आप एक इतना बड़ा मीडिया आई चैनल हो, टोटली एग्री। तो आई थिंक आई वांट टू नो व्हाट इज योर लाइक थॉट अबाउट इट, कि इज इट राइट दैट यू नो आपको, ठीक है, आपको टाइम के साथ चलना है, यू हैव टू बी ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स एंड एवरीथिंग, बट आई डोंट थिंक दे हैव टू बी इन्फ्लुएंसर्स। लाइक these handles should be just for there to give you a news story or a ऑफ news कोर्स, alert. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। और आप देखो भी ना, चाहे कितनी कोशिश कर लो आप, जो बॉर्न इन्फ्लुएंसर है या बॉर्न सोशल मीडिया क्रिएटर है, वो वैसा ही रहेगा हमेशा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैच देयर एनर्जी। बड़ा हम्म मुश्किल है वो जो कर रहे हैं, और उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको यूज करो, बट एक सही कॉज के लिए यूज करो ना। आप चैनल्स हैं इंडिया में, देशभक्त है हम्म ना, और न्यूज लॉन्ड्री है ना, रवीश भी अब इंटरनेट पे हैं। तो ऐसे हम्म बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आके और इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनके ऊपर बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जो हम्म इंटरनेट उनको आजादी देता है कि हाँ, तो आप इन दैट वे यूज करो ना, कि आप कुछ जो वहां पे बंधन थे आपके लिए, उनसे आप छूट करके और एक हम्म बेहतर काम की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम्म लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि जो इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहा है, उस पैसे को देख करके आप, तो योर थॉट इज टोटली मनी ड्रिवन, हम्म कि अच्छा वहां ज्यादा पैसा तो वहां जंप कर लेता हूँ, फिर अगर यहाँ ज्यादा आ जाएगा तो फिर यहाँ आ जाऊंगा। तो जब तक आपका थॉट प्रोसेस ही पोल्यूटेड है, तो कहाँ तो से कुछ ये भी सही हो तो पाएगा। वो बिजनेस इट्स की नॉट तरह अबाउट ट्रीट यू हो रहा है। चेंजिंग योर मीडिया। इट्स बीइंग ट्रीटेड एज अ बिजनेस, एज सिंपल एज दैट, कमर्शियलाइज्ड बिजनेस। तो इस सब में जो बच्चे एग्जैक्टली। पढ़ के आ रहे हैं ना, तो आई थिंक वो पिस रहे हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा उनको करना क्या है। हम्म उनको पढ़ाया बहुत कुछ ज्यादा गया, कंफ्यूजन है। वो कर कुछ और रहे हैं। अच्छा ये बताना हाँ, कि आई आई वांट टू नो, पहली सैलरी क्या थी आप लोगों की? एट 3 साल थाउजेंड कितनी थी पहली सैलरी? 8,000। 8,000। कौन सा साल है ये? इट वाज 2013। हाँ, 14, 13 एंड 14 बिगिनिंग। और डिग्री में कितना पैसा लगा था? आई थिंक मोर देन 3L। 3 लाख? हाँ, 3 साल मोर का देन 3 लाख? दैट, मोर देन 3 लाख। इंक्लूडिंग द रहना खाना पीना। अकोमोडेशन, खाना पीना सब। मोहित आपका?
क्या तो था, मैं था तो पहला सैलरी? ग्रेजुएशन जर्नी में, मेरी डिग्री नहीं आई थी, इससे पहले मेरे को एक ऑफर था, तो मैं 6600 में ज्वाइन किया था, क्योंकि आई वॉज डिस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब एट दैट टाइम, कि बस खत्म हो पढ़ाई और मैं कहीं तो जाऊं। मेरा इक्वेशन ये था कि मास्टर्स करने के बाद बच्चे और पैसा खर्च करें। मैथमेटिक्स ये था कि कोई जो मास्टर्स करेगा वो कम से कम 2 से 3 लाख 4 लाख और खर्च करेगा, है ना, और उसके बाद उस सैलरी पे लगेगा जितने पे मैं अभी लग जाऊंगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि हार्डली बैचलर्स और मास्टर्स की पढ़ाई कोई में डिफरेंस मैं नहीं। ये डिकोड कर चुका था कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो वाई टू वेस्ट मनी एंड एनर्जी, है ना। तो जब फिर भी बहुत पेयर प्रेशर में आके जब सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो मैंने अपने एक दोस्त से बड़े कान में पूछा, मैंने कहा सबसे सस्ता कोर्स कौन सा है, 6 महीने का पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर हो तो कम से कम एक वैलिडेशन मिल जाएगी मुझे कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ किया, बट मैंने वो भी नहीं करा। आई गॉट अ जॉब, आई जस्ट टुक इट, क्योंकि मुझे पता था कि इंडस्ट्री में घुस जाओ फिर देखेंगे क्या है। तो 6,600 रुपये का पहला ऑफर लेकर मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड कॉल फॉर हम्म। मी। मतलब कम और से कम आई वाज 2 years ahead ऑफ ऑल द पीपल अराउंड, हम्म। एक्सपीरियंस व्हाट भी अबाउट था। यू सौम्या? माय फर्स्ट सैलरी वाज 15,500, 2015 में। वे तो हेड ऑफ अस। तुम सीनियर थी ना मेरे से। बाद में सीनियर हुई ना। तो आपकी आपने आपने जो ये अपनी थॉट प्रोसेस बताया कि मास्टर्स नहीं किया और जॉब में घुस गए, आई थिंक हम्म। मेरा भी वही सेम थॉट प्रोसेस हम्म, था कि हम्म। 2 साल मास्टर्स करने से बेटर है हम्म, कि मैं फील्ड में घुस जाऊं। एंड आई रिमेम्बर हम्म, मेरे हम्म, सीनियर्स थे। जब मैं पहले तो आई हम्म, वाज हायर्ड एज एन, नॉट एज एन इंटर्न, व्हाट वाज रिटेनर। तो रिटेनर में वो सैलरी थी, उसके बाद मैं ऑन रोल हम्म, आई। तो ऑन रोल में थोड़ी सैलरी बढ़ गई, 21-22 हजार हम्म, रुपये हो गई। आई रिमेम्बर जो मेरे सीनियर थे जिनको 8-8 हम्म, 9-9 साल हो गए थे, दे वर अर्निंग द सेम एज मी। इट वॉज माई राइट, एंट्री सो पॉइंट इट एज वाज द ऑन राइट रोल काफी एम्प्लॉय। डिसअपॉइंटिंग था उस वक्त पे। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली से चंडीगढ़ कुछ लोग आए, अपॉइंट हो, लाइक रिक्रूट होके फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन चेन्नई। Their salary was more than what those people with 8 years or 9 years हाँ, of तो ये experience. बताना मेरे को चंदा कि ये भी तो है ना कि आप किस कॉलेज से पास आउट हो रहे हो। आप दिल्ली की गलियों में कॉलेज हैं जो उनसे पास आउट हो रहे हो, कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हो, कि आप नहीं चेन्नई नहीं के। नहीं, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि जो लोग 8-9 साल से डेस्क पे बैठ के अपनी मतलब they have started their lives, they have families to feed, they have their kids to बट who are दैट going to. सो अगेन चंदा अगेन, हम्म, टेन्योर वर्सेस कैपेबिलिटी फिर से आ गया यहाँ पे वो That it was कॉन्वर्सेशन। not capability, it was just the status of the college that they were passed out from. टेन्योर वर्सेस कैपेबिलिटी। आप क्योंकि 8 साल से किसी डेस्क पे हो, इस सिर्फ इस बेसिस पे आपकी सैलरी नहीं बढ़ सकती। आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपकी सैलरी बढ़ेगी। अगर पर वो वो जो बच्चे अच्छे कॉलेज आके से तो वो जो ट्रेन, बंदे, वो 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 जो बच्चे उन्हीं उन्हीं सीनियर से आके ट्रेन हो रहे हैं ना, क्योंकि उनको बेसिक्स तो नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे, लेकिन वो न्यू एज थे और वो बेटर न्यू कॉलेज एज से मीडिया आ से रहे आए थे। थे, बेटर कॉलेज से आए थे, अग्री टू एवरीथिंग। हम्म। बट जो सीनियर वहां बैठ के उनको सिखा रहे हैं, वो उनके जितना ही या उनसे कम कमा रहे हैं। तो ये हम्म। सीनियर्स को खुद भी पहले सोचना पड़ेगा थोड़ा यार, कि हम क्यों इनसे कम कमा रहे हैं ना। मतलब कुछ तो डिसीजंस गलत होंगे लाइफ में, कि नहीं होंगे, सारे सही डिसीजंस लिए हैं और फिर भी हम वहीं बैठे हुए यार हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक हम्म। बात कहना चाहता हूँ, व्हेन इन आवर टाइम्स ना, हम्म। जॉब, जस्ट गेटिंग अ जॉब वाज अ बिग वेरी बिग डील। थिंग। हम्म। मतलब जॉब मिल गई, मतलब मैंने तो जब जॉब शुरू करी है ना, मेरे को तो ये था कि एंट्री गेट मिल गया, बस नेगोशिएशन क्या होती है तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं पता तो था। जो आप मुझे भी नहीं गलती वो की आता बात था। सैलरी कर दे रहे हो, देते थे, ऐसे करते थे, हाँ तो माई बाप, हाँ, थैंक यू। हाँ, तो जो आप गलती की बात कर रहे हो ना, तो हाँ गलती यही थी दैट वी नेवर नेगोशिएटेड एट दैट पॉइंट। हाँ, हमें नेगोशिएट आता ही कर नहीं था नेगोशिएशन कुछ भी। नेगोशिएट करना। तो दैट वाज द मिस्टेक दैट वी मेड, मे बी दैट्स व्हाई। ट्रू। यही हुआ। ट्रू ट्रू, अपने लिए आज वालों को अपने लिए बोलना आता है, अपने लिए नेगोशिएट हाँ, करना आता बोलना है। ही तो आता है, वो उसी की खा रहे हैं भैया, ओके, मोहित, कैन यू बोलने की टेल तो अस, आता है। कैन यू टेल अस कि मतलब व्हाट हैज योर जर्नी बिन ऑन इंस्टाग्राम लाइक? व्हेन डिड यू स्टार्ट? कैसे आपने किया? व्हाट हैव यू लर्नड सो फार अबाउट सोशल मीडिया थ्रू योर इंस्टाग्राम? Pearls of wisdom from यस, मोहित, मोहित के ख्याल। और ख्याल ये मोहित के। ये मतलब ज्यादा तो कुछ नहीं, बस जो मैंने देखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ये है दैट
सोशल मीडिया इज अ वेरी ट्रिकी प्लेस, हम्म है ना। मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है यहाँ आकर कि, क्योंकि मैं जिन लोगों को समझता था, सम ऑफ द पॉडकास्टर्स, सम ऑफ द पीपल हु आई फाउंड कि यार यार ये क्या है, रियल हिट एक चैनल है इंडिया में, यूट्यूब बहुत बड़ा, 3 लड़के मिलके चलाते हैं उसे, पॉडकास्ट करते हैं, वेरी सेंसेशनल पॉडकास्ट, मतलब ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया जैसा ही पॉडकास्ट है, रियल कौन हिट, सा चैनल है, रियल क्या टॉक्स है? देखना। 3 लड़के हैं, हम्म 3 दोस्त हैं, हम्म रियल हिट और रियल टॉक्स 2 चैनल हैं उनके यूट्यूब, ओके और वो पॉडकास्ट चलाते हैं, और यूज टू लुक अप टू देम क्योंकि उनका चैनल बहुत बड़ा है, दे आर अर्निंग रियली गुड ऑन यूट्यूब, है ना। वो तो पॉडकास्ट करते थे, हर तरीके के लोगों के साथ करते हैं। तो जब मैं शुरू कर रहा था, somehow I got to meet them हम्म देयर इन नोएडा, नोएडा हम्म में ही उन लोगों का पूरा सेटअप है। एंड मेरा एक इन्फ्लुएंसर दोस्त था, मेरी डेस्टिनी ऐसी थी कि कनेक्ट करते गए मैं लोगों से। तो जब मैं वहां गया ना, आई फाउंड कि उनके पॉडकास्ट माइक्स भी डमी माइक्स थे। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग थिंग यार, कि मतलब लोग इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, स्टिल दे आर लाइक एक हैक कर रहे हैं वो, मतलब जुगाड़ से चल रहा है उनका पूरा हिसाब किताब। तो मैंने उनसे पूछा, उनकी टेक्निकल चीजें पूछी, सब कुछ पूछा, एंड इतना कॉन्फिडेंस आ गया मुझ में, उन्होंने पता है छुट्टी क्या, दे आर वेरी, मतलब वो लड़के इतने ज्यादा, मतलब डाउन टू अर्थ थे, मतलब ये उनकी क्वालिटी थी, देखते उन्होंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया। और हम्म मैं क्योंकि थोड़ा सा जिस तरीके का एक एनर्जी थी, है ना, क्योंकि जर्नलिज्म पढ़ के निकले, तो देख के समझ गए थे कि ये मतलब कुछ ऐसा बंदा है जिसके सामने झूठ नहीं बोल पाएंगे, हम्म कुछ प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, या वो ऑनेस्ट थे जो भी था। बट उन्होंने मेरे को बड़ा क्लियरली बताया, देखो भाई हमको नहीं आता कुछ भी, मतलब हम कोई इंटेलेक्चुअल नहीं लोग नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हमने बस यूट्यूब का एल्गोरिदम क्रैक कर लिया है कि अगर पॉडकास्टिंग करनी है तो या तो भूतों पे बात करो, या तो एस्ट्रोलॉजी पे बात करो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे बात करो। ये 3 चीजें अगर आप कर लोगे सर, तो आप 6 महीने में ग्रो कर जाओगे। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, तब मैं उनसे मिला, और तब उन्होंने मेरे को बात बोली। और उस दिन के बाद फिर मैंने ये पैटर्न नोट करना चालू किया सोशल मीडिया पे, एंड आई फाउंड दैट देयर राइट, इट इज वेरी इजी टू क्रैक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एल्गोरिथम, इफ यू जस्ट वांट टू यू नो गेट इनटू द लाइमलाइट। इफ अगर आपको वायरल होना है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। प्रॉब्लम ये है कि आप जो सच में सोचते हो ठीक है, जो आप सच में बताना चाहते हो, उस वो चीज के साथ वायरल होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये वाला वीडियो कितना व्यूज लेके आएगा मोहित जी? अब ये वाला तो आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, सी थंबनेल्स आर वेरी हम्म इंपॉर्टेंट ऑन सोशल मीडिया, थंबनेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म हमको जो ऐसा लगता है ना कि to certain extent you have to present your content the way audience want it to, you have to continuously study your audience, that's why इतना insight YouTube Instagram आपको देता है। एंड जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैं एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम करता था 3-4 साल, तो मैंने यही देखता था कि जब हम एक रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं, तो उसका मालिक उसे पहचानता है या वहां का वेटर उसको पहचानता है। सो दैट्स हाउ यू गेट टू नो अबाउट योर ऑडियंस कि कौन पहचानता है। हम्म जब जिस पॉइंट पे मैं वायरलिटी के पीक पर था लास्ट ईयर, हम्म जब मेरे मेरे 10,000 फॉलोअर्स 3 दिन में बढ़ रहे थे, हम्म मतलब एक पॉइंट भी था, मतलब बहुत। तो जब लोग मिलते थे, जो लोग मेरी स्टोरीज लगाते थे, तो मैं उनके अकाउंट्स को जाके देखता था, हम्म कौन लोग हैं ये, हम्म कि इनका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन क्या है, या ये कितना पढ़े हुए हैं, इनकी टेस्ट ऑफ कंटेंट क्या है। हम्म तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता था, क्योंकि कुछ ऐसी ऑडियंस थी उस टाइम मेरे पास, जो मेरी थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करती नहीं थी। तो हम्म जितना भी नंबर मेरे फॉलोअर्स में आ रहा था, आई वाज नॉट हैप्पी विद, हम्म तो स्टार्टेड डूइंग समथिंग कि जो उनको अच्छा नहीं लगता मैं वो बना रहा हूँ। हम्म और अब पिछले 6 महीने से मैं वही बना रहा हूँ जो उन लोगों को पसंद नहीं। एंड आई जस्ट सॉ कि अभी मुझे दोबारा से फिर से, जैसे मैं नई जर्नी पे हूँ, टू रीइन्वेंट फाइंड द करना करेक्ट पड़ रहा ऑडियंस, है। टू फाइंड द करेक्ट ऑडियंस। तो बेसिकली तो अगर वो सोशल मीडिया यू आर सेइंग इज ऑल अ गेम ऑफ कंफर्मेशन बायस कि बेसिकली इंस्टाग्राम आई वुड से यस, इंस्टाग्राम इज ओके। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एंड द प्रॉब्लम इज कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हो गया, वो भी यही चाह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चले। हम्म यूट्यूब अपने आप में एक कल्ट है, यूट्यूब अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे लॉन्ग फॉर्म को ही हमेशा मतलब आगे बढ़ाया प्रमोट है, हाँ करना चाहिए, हाँ हाँ हाँ। आगे प्रमोट करना चाहिए। बट एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज की डेट में वो भी उन्हीं लोगों को ज्यादा वायरल कर रहा है जो जो छोटा। शॉर्ट्स अपलोड कर ओके। बट इससे ऐसा नहीं होगा कि मतलब कंटेंट का स्तर गिरता जाएगा? गिर जाएगा।
ये भी बहुत ज्यादा, बात क्योंकि 30 सेकंड में और 1 मिनट में और 1.5 मिनट में आप यू देर इज ओनली सो मच दैट यू कैन से। ओके। हाँ। एक और प्लस एक तो ये सब तो है ही कहानी कि आप क्या कह सकते हो एज कंटेंट क्रिएटर्स, एज कंज्यूमर्स ऑल्सो। वो जो 30 सेकंड हम्म, की रील है, मैं दिन में 100 रील देख लूं बैठ के, पर यहाँ कितना रहेगा? मैं 100 अच्छी रील्स देख लूं, गुड इन कंटेंट देख लूं, ठीक है, तो भी नहीं रुकेगा। लेकिन वही मैं बैठ के अगर 15 मिनट का एक यूट्यूब वीडियो जहाँ पे गुड डेंस कंटेंट है बैठ के देख लूँ, तो वो कुछ रिटेन कर जाएगा मेरे दिमाग में, जो मैं अपने आप पे अप्लाई कर पाऊंगी, यूज कर पाऊंगी, राइट? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। um, Mohit, I also want to talk about हाँ a जी। little bit about the lesser known fields of media। ठीक है, जैसे कि जो भी बच्चे आज के टाइम पे जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जब वो 12वीं से निकलते हैं, हम्म, बड़े शहर के बच्चों को तो काफी कुछ पता रहता है, हम्म, क्योंकि बड़े शहरों में 12वीं में हम्म, जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे न्यूज राइटिंग या हम्म, एंकरिंग या रेडियो जॉकिंग हम्म, बताया गया, राइट? हम्म, मगर छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं, हम्म, मैं इलाहाबाद से हूँ, ठीक है, इलाहाबाद जैसे शहर राइट। में जो छोटे शहरों से बच्चे आते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है इसके बारे में। उन्होंने जो टीवी पे देखा है या जो हम्म, अखबार में ऐसे वो बायलाइन मिलती है वो देखी Highlight. है ना? वो बायलाइन का जो थ्रिल होता है हम्म, अपना नाम देखने का, पेपर में छपा हुआ। आज आई डोंट नो आज कितना है, बट मेरे टाइम हम्म, में बहुत ज्यादा था जब मैं पढ़ रही थी। तो अभी भी है। ऐसे, हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए लाइक जैसे मैं एक, आई विल हम्म, स्टार्ट बाय सेइंग, जैसे मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से ब्रांडेड हम्म, कंटेंट में चली गई। ओके, सो ब्रांडेड कंटेंट इज हम्म, अनदर फील्ड दैट यू कैन एक्सप्लोर, which pays better than the mainstream हम्म, media, which has better work life हम्म, balance than the mainstream media, a little bit better respect than the हम्म, mainstream media। ठीक है, और ऑफ कोर्स। लड़कियों के लिए थोड़ा इजियर ऑप्शन है विथ द काइंड ऑफ, जैसे कोई टाइम लाइंस, टाइम बॉर्डर्स नहीं होते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। अगर आप घुस गए हो और आप ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी कर रहे हो, मिडनाइट शिफ्ट भी कर रहे हो, पर ब्रांडेड कंटेंट में जनरली ऐसा नहीं होता है। और नहीं I होता। can give you more details about what branded content is and how you can get into it. You can reach out to me directly. हम्म, It has हम्म, it has much better ROI in terms of what you put versus what you नहीं, get. अगर जो भी ऑडियंस ऑडियंस देखेगी, अगर उसको मतलब एक बहुत लेमन एज एक लेमन को जानना है व्हाट इज ब्रांडिंग प्रोडक्ट, एक लेमैन को मतलब अगर एक जानना है तो ब्रांडेड कंटेंट होता है, um, आज की दुनिया में जहां पर एड्स को स्किपेबल बनाया गया है, और एडवर्टाइजमेंट बेसिकली क्या है कि एडवर्टाइजमेंट है कि ये रिमोट है, ठीक है, ये एक काले रंग का रिमोट है, इस पे लाल बटन है, अगर आप ये खरीदोगे तो आप अपना टीवी इससे चला सकते हो, इसको खरीद लो, इसका प्राइस है 299 रुपए। ये है हम्म, आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। हम्म, हम्म, इसका पीआर हम्म, होगा, हम एक इवेंट करेंगे जिसमें हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएंगे और हम कुछ कुछ रिमोट बांटेंगे और टीवी चला के दिखाएंगे, ठीक है, वो होता है पीआर। हम्म, ब्रांडेड कंटेंट ये है कि हम एक शो बनाएंगे जहां पर वो शो हम्म, में कहीं भी इस रिमोट के बारे में बात नहीं हो रही होगी, वो शो एंटायरली ओके। किसी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे होगा, और वहां पे कहीं सटली एक आध बार ये रिमोट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये लाइक होता है कोक ब्रांडेड स्टूडियो। कंटेंट। लाइक कोक स्टूडियो इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ब्रांडेड कंटेंट दैट वी हैव सीन, ठीक है, राइट, राइट। जो हम सबकी जबान पे है, ठीक है। तो I am into हाँ। branded content since last 5, 6, 7 years now. I have worked with ओके। Times Network, with uh, हम्म, Business Standard, with another, or I हम्म, moved on from branded content to brand strategy and then working with different brands. And so I have हम्म, worked with over 200 brands in हम्म, India and internationally through branded content. हम्म, ठीक है, तो आपको पर्क्स मीडिया वाले हम्म, मिलेंगे, क्रिएटिविटी मीडिया वाली मिलेगी, पूरा वो शोशा मीडिया वाला मिलेगा, हम्म, कैमरा, लाइट्स, एंकरिंग, ये वो, लिखना, सब कुछ आपको वो मिल रहा है मीडिया वाला, पर सैटरडे संडे ऑफ भी मिल रहा है, सैलरी काफ़ी बेटर है। हाँ, I traveled almost the entire of Northeast while making वाओ। documentaries for branded content. So it's a very, very lesser known field of media,
but I Not definitely explored that much. not explored that much. Yes. So this is Okay. one that I know about. Is there anything that you guys know about Wow, that yeah. can benefit our audiences, hmm Chanda and Mohit? It's a very good insight, I guess, for everyone who Mm. everybody's like I think everybody, there's so many people around me who are switching their careers at the age of 40 or 42. It is very unfortunate, but I have witnessed so many people, they are But Mohit, frustrated why with what is they're it doing. unfortunate? I don't consider it unfortunate. I consider it fortunate. These No, people who are switching careers at 40 are still alive and they're not giving up. It's they are about not alive, giving up, but it is right? not that easy. No, Nothing is no. easy, Let me Mohit. tell you one thing, and I totally agree. No, no, it's not just, see, Hmm. it's not about hard work. What I'm Hmm. trying to say, that people are not that self-aware. Hmm. People leave their jobs without any plans. So that what scares me a lot. That Hmm. people are just कि आजकल सुन लिया कि मतलब see Ranbir Kapoor from ये जवानी है दीवानी has influenced people in a very negative, in a very wrong way. People who are frustrated with their jobs somehow and having no भाई idea पसंद about है what they मुझे want अपना to do. 9 Like to 5, आप क्यों उसको सुन क्यों के नहीं पसंद है? हाँ मतलब एक बहुत ही फेमस आई थिंक कुशा कपिला की रील थी कि भाई ये इन्फ्लुएंसर तो बाय चांस बन गई, वो कंटेंट क्रिएटर, उसको अपनी 9 to 5 की जॉब बहुत पसंद थी। शी वाज लाइक मेरा बेसिक हाँ, सर्वाइवर था वो। स्टैंड रवि गुप्ता इज अ रवि गुप्ता एक इन्फ्लुएंसर, वो इन्फ्लुएंसर कर रहा हूँ, सॉरी, स्टैंड Ravi अप Gupta is a कॉमेडियन है, अप वो friend. भी कॉमेडी। अच्छी बात कही थी उन्होंने। सॉरी, He's a friend. He's a friend. ही इज योर फ्रेंड? Yeah. Oh wow, I'm a big fan of his work. Uh, Yeah. see, I just want to say he said one thing in a joke, but it is really like एक reality इस तरीके से कि मतलब जरूरी नहीं है आपका, अगर आपके काम में मन नहीं लग रहा तो आप किसी और चीज के लिए बने हो सकता है कि आप आलसी हो। सो दिस इज समहाउ अ रियलिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये जॉब मिल गई, मैं किसी Hmm. और चीज के लिए बनाऊं, Hmm. दे हैव नॉट फाउंड दैट थिंग येट। Hmm. आई गेस जॉब करते करते पहले पहले थोड़ा एक्सप्लोर कर लो जो Hmm. करना चाह रहे हो। सो मेनी स्टैंड अप कॉमेडियंस इन इंडिया, सो मेनी पीपल जो अपनी जॉब्स के साथ कर रहे Hmm. हैं। आई थिंक और स्विचिंग एक करियर इज ऑल्सो नॉट एक मुझे लगता है रॉन्ग। सोशल मीडिया ने एक बहुत गलत नोशन, एक और थोड़ा सा सोशल मीडिया ने कर दिया या शायद पूरे उसमें इस एनवायरनमेंट ने कर दिया कि थ्रिल ऐसे पैशन ऐसे उसको फॉलो। भाई अच्छी चीजें ना बोरिंग ही होती हैं टू बिगिन विथ, एंड देन यू स्टार्ट, हाँ ऑफ कोर्स। है ना? मतलब वो ग्रंट हाँ वर्क आपको देना पड़ेगा, नंबर ऑफ आवर्स आपको देने हाँ हाँ पड़ेंगे उस आर्ट को हाँ समझने में, उस प्रोफेशन को समझने में आपको अपनी घिसनी पड़ेगी। हाँ। और वो घिसने वाले पीरियड को सब इवेड करना चाहते हैं। ये तो ठीक है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में है, चाहे शादी हो चाहे नौकरी हो, मजा सिर्फ 5 मिनट ही आता है, तो उसके बाद स्ट्रगल ही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि सोशल मीडिया लोगों को लगता है कि बहुत इजी है क्रैक करना। हाँ कहीं लोगों ने ढूंढ भी लिया क्रैक कैसे करते हैं, कि वायरल कैसे होते हैं, आप ब्रांड्स के साथ कैसे काम करते हो। पर इट्स नॉट इजी। मतलब Nothing अगर is आपको नो, easy, यूट्यूब, Chanda. Nothing आई is. नो, Why people say it's not easy? Because anything is not easy. क्यों यू सी शुड बिकम अ इफ यू, मोटिवेशनल स्पीकर। सौम्या, हाँ मतलब उसमें आपका ज्यादा स्कोप है, इंडिया में तो बहुत लोगों को चाहिए ये चीज। यहाँ तो आपको पता है हमारे यहाँ जो इंडिया में आसान है बोलते थे, वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी आसान नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट अरे ये संदीप तो वो है ना, महेश्वरी। ये दिस इज संदीप महेश्वरी। महेश्वरी, हाँ दैट इज व्हाट ही हाँ। सेइंग। संदीप महेश्वरी। Uh, His company is almost on the verge of getting closed. Image Bazaar. bankruptcy. Hmm. Yes, yes. वो It's ओ getting ओ closed because मैं now समझ he's गई, selling समझ his गया। business courses like business. मतलब नथिंग इज So इजी, मुझे ऐसा लगता है नथिंग इज इजी। ठीक है, सब हर चीज में वो yes. नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ ऐसे बैठ करके ऐसे खुद को ग्राउंड करके आपको देने पड़ते हैं नंबर ऑफ आवर्स। इट वाज वेरी नाइस हर स्पीकिंग टू एक यू, चीज मोहित। सबके लिए नहीं बनी है। हाँ बोलिए, हाँ हर हाँ, एक चीज सबके, ओ यस। हर हाँ एक ये चीज आपने सबके लिए बहुत नहीं बनी है। इंपॉर्टेंट And I just बोली। want to end it here with this thing only कि कई बार इंडिया में ना बड़ा एक वो एक बड़ी लॉबी जो बोलती है कि सबको बिजनेस करना चाहिए, नौकरी भेड़ चाल, बेकार ओ है, ये यस। वो। हमारे यहाँ जो भेड़ चाल है। जिसके पास कैपिटल है, जिसके बाप के पास पैसा है, वो बिजनेस करेगा, जिसके पास नहीं है वो नौकरी करेगा चुपचाप। अरे जैसे मैं आई हैव आई लर्न डोंट नो इट। इफ यू हैव नोटिस्ड, बट ये जो राज शमानी जी हैं, ये इस वक्त पूरे भारत के युवा को बिजनेसमैन बनाने में लगे हुए हैं।
मुझे ऐसा फील हो रहा है इनके पॉडकास्ट देख के। पैसा कैसे हम्म कमाए, ये कमा के कैसे, इसको कमा के ये करके कैसे वैसे पैसा बनेगा, वो करके कैसे वैसे, कितना कमा उनके लेते हैं आप, कितना कैसे। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड, was doing business so easy कि ये जो पूरा बिजनेस का आइडिया है ये एक ही सर्टेन कम्युनिटी में ही रह गया। ये जो मारवाड़ी बनिया जैन कम्युनिटी है पूरी, ऐसा क्यों है कि हम्म। मैक्सिमम सक्सेस रेट उधर ही है और बाकी जगहों पे नहीं है? समझ रहे हो आप ऐसा मेरी कुछ बात? भी नहीं, इट्स ऑल द अरे गेम ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ, अरे मतलब मैं कह रही हूँ कि इट्स ऑल खानदानी गेम ऑफ बिजनेसेस प्रोजेक्शन। भाई जिनके पास कैपिटल है मेन वाला, वो तो हम्म। उधर ही है ना। ये जो अपने रिस्क पे हाँ। 20,000 स्टार्टअप्स खुलते हैं, 19,000 बंद होते हैं। ठीक है। तो ये जो रोमांटिसाइजिंग द आइडिया ऑफ हम अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ऑफ कोर्स इट्स नाइस है ना, इंडस्ट्रियसनेस लाना अपने अंदर अच्छी बात है। पर लाइक मोहित सेड, हर चीज सबके लिए नहीं होती है। तो ये पता कैसे लेकिन करेंगे मोहित कि मेरे लिए क्या है? सेल्फ अवेयरनेस भी तो इम्पोर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योरसेल्फ, बीइंग क्लोज टू रियलिटी। एवरीबॉडी वांट्स टू लिव इन डिल्यूजन दीस डेज। एंड और इस आइडिया को प्रमोट करने के लिए जो सोशल मीडिया पे दुनिया भर के लोग गए, हम्म। दे विल ऑलवेज वैलिडेट योर थॉट कि यार तुम कुछ भी कर सकते हो। बी प्रीटी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट एवरीथिंग इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। हम्म। काउंसलिंग क्यों है? 12वीं के बाद काउंसलिंग क्यों होती है? क्यों क्यों लोग बैठे हैं, काउंसलर्स बैठे हैं? वो आपको बताते हैं ना कि क्या जरूरी है। हम्म। वही है ना। सो सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब 12th के बाद 1 साल का ऑफ ले लो भाई, अपना ढूंढो पहले अपने आप को। वाइल यूर स्टडिंग, अपने अपने मेन जो आपका फोटे है उसको तो खोजो। अगर आप जर्नलिज्म कर रहे हो, इतनी सारी चीजों के बीच में एक चीज तो चूज करो जिसपे पैरेलली आप काम करो। अगर आप फोटोग्राफी आपको लगता है कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो चाहे हीरे की अंगूठी मत पहनो, बढ़िया मोबाइल मत खरीदो, स्टिल हमारे साथ एक गौरव चौहान पढ़ते थे, अगर आपको याद है। सौम्या आपके सीनियर है। टुडे ही इज वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स इन आवर कंट्री। जब हम लोग पोस्ट अपने सब शो ऑफ कर रहे थे, हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे, ही कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, स्टिल ही वाज यूजिंग द कीपैड फोन एट दैट पॉइंट। माय लाइफ जस्ट गॉट दैट्स ओके, बैटरी दैट्स चली गई ऑलराइट, उसकी। दैट्स ऑलराइट। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ही सेक्रीफाइस सो मच एट दैट टाइम। उसने बहुत सेक्रीफाइस किया उस वक्त पे, है ना। और सिर्फ ये सोचा, उसने फोकस किया जब वो जर्नलिज्म कर रहा था। एट द सेम टाइम पैरेलली वो जामिया से फोटोग्राफी का डिप्लोमा कर रहा था, सेम एट द सेम टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 1% ऐसे लोग थे जो किसी एक चीज पे फोकस थे वाइल स्टडिंग एवरीथिंग इन हम्म। अ पर्टिकुलर कोर्स, एक ग्रेजुएशन के। हम्म। तो उसने टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन ये अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। आपको जो लगता है कि आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, आप स्क्रिप्ट लिखो ना। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग तो पहले सेमेस्टर में आ जाती है ना। वाई डोंट यू इवॉल्व इन टू दैट थिंग? आप उस चीज में और ज्यादा क्यों नहीं घुसते? अपनी क्लासेस अब के तो बाद आप खैर, किसी अब ऐसे तो इंसान बहुत के ही पास। इवॉल्व होना पड़ेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग तो बहुत ही अब मॉडल चेंज हो चुका इट्स एन है। एग्जाम्पल। आई अंडरस्टैंड। सो आप जाते जाते, इफ हाँ। देयर वाज लाइक वन टिप दैट यू वांट टू गिव टू एस्पायरिंग मीडिया content जर्नलिस्ट्स, creators. कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया जर्नलिस्ट जो अभी अपना ये ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक इट शुड बी अकॉर्डिंग टू यू? एंड आई विल कम टू यू नेक्स्ट, चंदा। व्हाट विल योर टिप बी? वही कि आप जो सबसे आपको लगता है कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है। एंड वंस यू फाइंड समथिंग दैट यू आर गुड एट, हम्म। जस्ट इवॉल्व इन दैट, उस चीज में घुस जाओ। हम्म। मतलब और कॉलेज पे निर्भर मत रहो। फाइंड सम गुड गुरु, एक अच्छा गुरु ढूंढो, है ना। मेंटर। और उसके साथ चिपक जाओ। मेंटर ढूंढो, है ना। गॉड फादर नहीं, मेंटर ढूंढो। और उसके साथ रह करके अपनी कला में निपुण हो जाओ। वंस यू आर परफेक्ट इन व्हाट यू डू, एवरीथिंग विल फॉलो। दैट्स Don't be dependent on the academic or the course of your college. Hmm. What do you राइट। think, Chanda? इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। Yeah, I think Mohit is absolutely right. अगर आप ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपके हाथ में एक डिग्री है, Hmm. इम्पॉर्टेंट है, आप अपना अटेंडेंस एंड एवरीथिंग यू टेक केयर ऑफ इट, बट साइड बाय साइड see where your interest lies and try go in depth in that particular field or that subject. And जितना ऑन फील्ड आप एक्सपीरियंस ले सकते हो थ्रू इंटर्नशिप्स और थ्रू
various YouTube channels if there are educational channels of particular thing you want to learn or you Hmm. want to do, or just जैसे मोहित ने बोला, अपना मेंटोर ढूंढो, एक अपना गुरु ढूंढो और फॉलो करो, या ऑन फील्ड जितना एक्सपीरियंस ले सकते हो आपके समर ब्रेक में, आपके जो वेरियस हॉलीडेज यू हैव बिटवीन द सेमेस्टर्स, डू दैट Hmm. because it जितना is टाइम going to लोग take you गॉडफादर और somewhere. शुगर डैडी ढूंढने में लगाते हैं जितना जितना वक्त लोग गॉडफादर और शुगर डैडी ढूंढने में लगाते हैं, ये शुगर इतना डैडी वक्त इंडिया अगर में एक होता अच्छा है गुरु क्या ये ढूंढने में सब? लगा दें, इंडिया में सब कुछ होता हो है गया ना. शुगर इंट्रोड्यूस। ये सब होता है सब क्या? कुछ होता है, बस ये नाम अभी मिला है लोगों को इसका। ए सब होता है भाई, इंडिया में, क्या बहुत नहीं आगे होता पहुंच इंडिया। गया हमारा देश। विश्व गुरु है इंडिया सौम्या, और आप क्या सोच रहे हो? हम पॉपुलेशन में भी सबको बीट कर चुके हैं. हाँ, बहुत विश्व Wow. गुरु हैं। And if I had to tell something to aspiring journalists who are passing out, there are several other fields of media that you can explore. मार्केटिंग से लेकर के, डिजिटल मीडिया से लेके, ब्रांडेड कंटेंट से लेकर के, और भी काफ़ी सारी हैं. इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन गेट इन टच विद अस. Thank you so much, Mohit, for joining us. And I hope Thank you we very much, continue Soumya. having some more meaningful conversations on Mother of Podcasts. Yes.